శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః.
శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణం నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं మమ అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం శ్రితచేతన మందారం శ్రీనివాసం మహం భజే என்று శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్మయ రత్నదీపం ஆஜானுபாகும் அரவிந்ததளாயதாட்சம் ராமம் பஜே விநாசகரம் நமாமி என்று அந்த ராமபிரானையும் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் தை மாதம்
சனிக்கிழமை புனர்வசு நட்சத்திரம் சதுர்தசியுடன் கூடிய சனிக்கிழமை. இதோ பகவானையும் பிராட்டிமார்களையும் சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது திருக்கல்யாண மகோத்சவம். நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் தினந்தோறும் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதோ முதலில் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஐயர் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. முதலில் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது. இந்த கைங்கரியம் தொடங்கியது முதல் முடிவு வரை எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் காப்பவர் விஸ்வக்சேனர். ஆகவே அந்த விஸ்வக்சேனரை ஆராதனை செய்து அதன் பிறகு மற்ற கைங்கரியங்கள் ஆரம்பிக்க உள்ளார். சேவிக்கலாம். சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா என்று சேவிப்போம் திருமலை அப்பனை. இந்த சனிக்கிழமை நன்னாளிலே பகவான் நமக்கு எழுந்தருளி அவருடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்தால் श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोविगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि धत्तागं शुचिरगं शुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिका पाशा विददाः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहगामि जले सर्वतीर्थजलमावाहगामि वरुणमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि धारायां वायुमावाहगामि कूर्चे सरस्वतीमावाहगामि पुष्पे फुल्लमावाहगामि अक्षते काश्यपमावाहगामि तण्डुले रविमावाहगामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाग्रमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्ने गोगस्मात् किजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपागिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जगामावाहगामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन्
विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवागं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिशृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षपर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सुस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवायत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरतिरन्तरिक्षमतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपविकुशं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवद्गीतनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवद्गीतनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्गीतनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगोभवस्थान ऊर्जे दधातनां महेरणागिचक्षुषे दिविश्रगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां सम्भव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसागत्वां पवमानस्सु वच्चनः पवित्रेण विचर्षणैः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुकुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाते यस्कै वक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरी यज्ञगे मा पुरीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदा मोर्जगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्यदन्तोः
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्पतिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकाल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनगन्तीगुं स्वरूपाम् वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பகவானை சேவிக்கலாம். ஆனந்த நிலையவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா. விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை சேவிக்க உள்ளோம். ஆனந்த விமான நிலையம் என்பது வேங்கடவண்ணன் ஸ்ரீனிவாசன் எழுந்தருளி இருக்கும் விமானத்திற்கு ஆனந்த நிலைய விமானம் என்று பெயர். உயர்ந்த ஆனந்தத்தை உடையவனாக இருப்பதாலும் இதற்கு மேல் வேறொரு ஆனந்தம் இல்லாத ஸ்வரூபத்தை உடையவனாக இருப்பதாலும் அவர் உறைந்துள்ள விமானத்திற்கு ஆனந்த நிலையம் என்றும் பெயர். தான் மட்டும் ஆனந்தமாக இல்லாது தன்னோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் அனைவரையும் தன்னுடைய நிலைக்கு உயர்த்தி தன் ஆனந்தத்தை அளிப்பதாலும் இந்த பெயர் ஏற்பட்டது என்று விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலே ஆனந்த என்றொரு நாமமும் உண்டு. மேலும் விமானம் என்கின்ற பதத்திற்கு அளவில்லாதது என்று ஒரு பொருளும் உண்டு. பகவானுடைய கலைகளில் ஒரு கலை விமானத்தில் இருப்பதாக ஆகம சாஸ்திரங்கள் பேசுகின்றன. இம்மையிலும் மறுமையிலும் வேண்டியவரா வேண்டியதை தருவதாக இவரை மகா ஆனந்தமூர்த்தி என்றும் கூறுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஆனந்த நிலைய வாசனுக்குத்தான் இதோ திருமலையிலே கல்யாண உற்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நிர்வகித்து கொண்டிருக்கிறார். நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து புஷ்பங்களால் அர்ச்சனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். தேவர்களெல்லாம் வந்து குழுமி இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களை கூட ஆஹ்வானம், அதாவது வரவேற்பு கூறி அவர்களையும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே பங்கு கொள்ளுமாறும் பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெறுமாறும் கூறுகிறார்கள். ஆகவே பக்தர்களே, அவர்கள் மட்டுமல்ல, நாமும் கூட பகவானை சேவித்து அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தையும் சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. அப்பொழுதுதான் பகவான் நமக்கு எழுந்தருளி, அதாவது இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே காத்தருளுகிறார். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று சதா சர்வ காலமும் ராமநாமத்தை ஜபித்து கொண்டிருக்கும் ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் அந்த ராமாவதாரம் இங்கே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி இதோ நமக்கு அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறார் பகவான். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்குத்தான் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிப்போம் ஆனந்த நிலைய வாச கோவிந்தா 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 என்று அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ராமாவதாரத்திலே அந்த தந்தை சொல்லுக்கு கட்டுப்பாடிருந்து ஏகபத்னி விரதத்தினார் மற்றும் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனன் என்ற பெயரும் அவருக்கு உண்டு. ஓம் சுஜீவோ ஹவ்யாமிருத சுச்சீராகம் சுச்சுகும்பினோம் யத்ஹரகம் சுச்சிப்யः ருதேன சத்யமிருத சாப ஆகிஞ்சுது ஜன்மான சுச்சயப் பாவகாः ஓம் ஷன்னோ நிதத்தாம் தபசோதிஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாயாம் ஓம் சேஷமாவாஹயாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி சேஷாகிரமः இதமாசனம் சேஷாகிரமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி ஆத்மனீயம் சமர்ப்பயாமி புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி
शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुपप्रवामहि सोमो स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्त्रभवस्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिं स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविव पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वश्चगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेम अम्हो मुचमाङ्गिरसङ्गगन्धस्वस्त्या आत्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगं शुभम् ஏடுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை என்றால் நமக்கு நினைவிற்கு வருவது வேங்கடவன். அந்த வேங்கடவனை ஒவ்வொரு 3 மாதத்திற்கும் வந்து சேவித்து கொண்டு செல்லுகிறார்கள் பக்தர்கள். 3 மாதங்கள் மட்டுமல்ல, எப்பொழுதும் கூட வந்து அந்த பகவானை சேவித்து அவனுடைய அருளை பெற்று செல்லும் பக்தர்களுக்கு அந்த பகவான் ஆபத் பாந்தவன் அநாத ரக்ஷகன் என்றெல்லாம் கூறி எங்கெங்கோ இருந்து தொலை தூரத்தில் இருந்து பகவானை நடந்து வந்து சேவித்து செல்லுகிறார்கள். திருமலைக்கும் திருப்பதிக்கும் வந்தால் வாழ்க்கையிலே ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என்பது உறுதி. ஆகவேதான் பக்தர்கள் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே சேவித்த மாத்திரத்திலேயே திரும்பவும் புனர்தரிசன பிராப்தரஸ்து என்று நினைத்து கொண்டு திரும்பவும் வந்து அந்த பகவானை சேவித்து கொள்ளுகிறார்கள். ஆகவே நாம் இதோ நேரடி ஒளிபரப்பில் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். பக்தர்களே, கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு இதோ அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிக்கலாம். கோவிந்தா கோவிந்தா. அந்த பகவான் விபவ அவதாரமா அர்ச்சாவதாரமா என்ற ஒரு கேள்வி. நரசிம்மன், ராமன், கண்ணன் போன்ற தோற்றங்களோடு பகவான் பூமிக்கு வருவதை விபவ அவதார நிலை என்றும் சொல்கிறார்கள். ஸ்ரீரங்கநாதன், வரதராஜன், சாரங்கபாணி போன்ற திருக்கோலங்களில் இறைவன் கோவில்களில் எழுந்தருளி இருப்பதை அர்ச்சாவதார நிலை என்றும், ஆனால் திருமலை ஸ்ரீனிவாசன் முதலில் அங்கே அவதாரம் செய்த பொழுது விபவ அவதாரமாக தோன்றி பத்மாவதியை திருமணம் புரிந்து அதன் பின்னர் அர்ச்சாவதார நிலைக்கு மாறி கோவில் கொண்டவர். விபவம், அர்ச்சை ஆகிய 2 நிலைகளுக்கும் இணைந்திருப்பது ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கே உண்டான தனிச்சிறப்பு. அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீனிவாசனுக்கு வேங்கடமுடையானுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நிர்வகித்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த ரக்ஷா பந்தனம் என்பது ரக்ஷையை அணிவிப்பது. அவர் தன்னுடைய கரத்திலே அணிந்து கொண்டு பக்தர்களை எல்லாம் ரட்சிப்பவர். அதனால் தான் அவருக்கு ஆபத்து நிலையிலே கூட நாம் கோவிந்தா என்ற ஒருமுறை கூறினால் உடனடியாக ஓடி வந்து நம்மை ரட்சிப்பார் அந்த வேங்கடவன். அப்படிப்பட்ட வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமலை கோவில் உள்ளே கர்ப்பகிருஹத்திலே இருக்கும் அந்த நிலையிலே திருமலை அப்பன்கர் ஏற்றப்பட்டிருக்கும் எண்ணெய் விளக்குகள் என்றும் அணைவதே இல்லையாம். ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அவை எரிந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றனவாம். என்ன ஆச்சரியம்! சற்று காற்று வந்தால் கூட விளக்குகள் நாம் விளக்குகளை ஏற்றினால் அது அணைந்துவிடும். ஆனால் பகவானிடம் உள்ள கர்ப்பகிரகத்திலே உள்ள இடத்திலே அந்த விளக்குகள் 1000 ஆண்டுகளாகியும் எரிந்து கொண்டே இருக்கிறதென்றால் அந்த பகவானுடைய அனுகிரகம்தான் நமக்கு. அந்த பகவானுக்கு அதிபதி யார், அதாவது திருமலைக்கு அதிபதி யார் என்றால் சுவாமி புஷ்கரணி கரையில்
வராக சுவாமி பெருமாள் தான் திருமலைக்கு அதிபதியான பெருமாள். அவரிடம் 100 சதுர அடி நிலம் கடனாக பெற்றுக்கொண்டு ஆனந்த நிலை விமானத்தின் கீழே கர்ப்பகிருகத்திலே ஸ்ரீனிவாசன் கோவில் கொண்டிருக்கிறார். எனவே திருமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் முதலில் வராக பெருமாளை தரிசனம் செய்துவிட்டு அதன் பின்னர் மலையப்ப சுவாமியிடம் செல்ல வேண்டும் என்பது ஒரு மரபு. அப்படி வராக சுவாமிக்கு முதலில் ஆராதனை நைவேத்தியம் செய்த பின்னரே எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு செய்யும் வழக்கம். அப்படிப்பட்ட அந்த வராக சுவாமியை தரிசனம் செய்து கொண்டு இதோ எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். எம்பெருமானுக்கு ரக்ஷையை அணிவித்த அர்ச்சக சுவாமி இதோ பிராட்டிமார்களுக்கும் ரக்ஷையை அணிவிக்க பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். திருமலை கோவிலிலே ஒரு மண்வெட்டி உள்ளது, அதாவது கடப்பாறை என்று சொல்லுவார்கள். திருமலை அப்பனுக்காக புஷ்பங்கள் அனைத்தும் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ராமானுஜரின் சீடரான அனந்தாழ்வார் அமைத்த நந்தவனத்தில் இருந்துதான் இன்றளவும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஒரு சமயம் திருமலை அப்பனே சிறுவனாக வந்து அனந்தாழ்வானுடைய லீலை புரியச் சென்றானாம். அப்பொழுது அந்த சிறுவனை தன் மண்வெட்டியால் அனந்தாழ்வான் அடித்தார். சிறுவனின் தாடையில் இருந்து இரத்தம் பெருகி வந்ததாம். அத்துடன் சிறுவன் ஓட அவனை அனந்தாழ்வார் துரத்தி வந்தார். மலையப்பனின் கர்ப்பகிருகத்திற்கு சென்று அந்த சிறுவன் மறைந்து போனானாம். வந்தவன் மலையப்பனே என்று உணர்ந்தான் அனந்தாழ்வார். மலையப்பனின் தாடையிலிருந்து இரத்தம் வந்தபடியால் அந்த இடத்திலே பச்சை கற்பூரம் வைக்கப்பட்டது. அதனால் தான் இன்றளவும் மலையப்ப சுவாமியின் தாடையில் பச்சை கற்பூரம் இருப்பதை நாம் காணலாம். அப்படி பெருமாளை அடிப்பதற்கு அனந்தாழ்வான் பயன்படுத்திய மண்வெட்டி இன்றளவும் சன்னதி நுழைவாயிலில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதோ ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை அணிவித்த அர்ச்சக சுவாமி அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானுக்கு அணிவிக்கப்படும் மாலையானது உள்ளே சென்றால் வெளியே வருவதில்லை. திருமலைக்கு மேல் மலையப்பனை தவிர வேறு யாரும் மாலை அணியக்கூடாது என்றொரு மரபு. மேலும் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் மாலைகள் ஏதும் திரும்ப வெளியே வருவதில்லை. பெருமாளின் கருவறைக்கு பின்புறம் வாயிலாக அவை வெளியேற்றப்படுகின்றன. மலையே பகவானின் வடிவம் என்கிறார்கள். திருமலையில் 7 மலைகளும் திருமாலின் வடிவமாக போற்றப்படுவதால் ராமானுஜர் திருமலைக்கு வந்த பொழுது மலை மீது ஏற முதலில் மறுத்துவிட்டாராம். திருமலை பாதை தரிசிக்க இயலாதவர்கள் அந்த 7 மலைகளையும் தரிசித்தாலே அனைத்து பாவங்களும் நீங்கிவிடும் என்று குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தவிரான் பரன் சென்று சேர் தொழ திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழ நம்பினை ஓய்மே என்று கூறுகிறார்கள். मगिदेवात्रमिदमागदन्तामय्याशिरस्त्वमगदेवहूतिः दैव्या होतारामनिशन्तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः माक्यै यदन्तमगानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चदस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाता जातवेदो भुवनस्य रेत यः सिञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमीगर्भात्यनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहर प्रजानन् आगिप्रजागं मृगिमस्मासुधे किजस्रोतीति हिनोदुरोणे अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सत्स्यबर्हिषि कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्
ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेमतः स्वरुचो वेन आवहां स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गो नमसितश्च विवहां ॐ ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातुं साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणीयो ददास तस्मै ॐ सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसविधप्रहरेम वीतगे पूषाते ग्रन्थिं विश्कतुम् आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तुनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतपदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शृन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवादं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तुं संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगत्यागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अप उपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवतसोममावाहगामीं औपासनेयज्ञमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टुर्निर्वपामीं इन्द्रागे जुष्टुर्निर्वपामीं अग्नगे जुष्टुर्निर्वपामीं सोमागे जुष्टुर्निर्वपामीं वसुभ्यो जुष्टुर्निर्वपामीं मरुद्भ्यो जुष्टुर्निर्वपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टुर्निर्वपामीं अपवपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टुर्निर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टुर्निर्वपामीं आज्यं द्रुप्यदिष्टगामीं चरं द्रुप्यदिष्टगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगं रक्षोऽन्तरिता अराधगः प्रत्युष्टगं रक्ष प्रत्युष्टा अराधगः चित्पदिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा वाक्पदिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः ॐ इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नगे नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यातसे नमः पङ्क्तिरातसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवां षष्टिशतसहस्रान्निकतमक्षगमर्पुतमानगाम् अगन्तगत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्वतेऽर्थवर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येनां समेधग स्वाहा
वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्यां ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्केम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि थारगन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वजक्षराददक्क स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृवाकं सुसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक्क स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः చూచి చూచి నీ పెండికి సోవానా పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవానా పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా
विखनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अथ भगवतो महापुरुषस्यां श्रीमदादिनारायणस्याम् अचिन्त्या परिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो भागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधोभागे महानालागमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफना मणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती शोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेयं पौण्डरीक अश्वमेधादीं शतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रबोध सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्रपुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्तसकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादिपञ्चायुधधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां पञ्चविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्यां परतत्व विभव व्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्यां श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां समस्तदेवतां निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्यां श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्यां श्री महाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वितां
भारद्वाजसगोत्रोद्भवायां भक्तलोकपरिपालनायां किरीटहारकेयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्यकौस्तुभालङ्कृतायां दिव्यपीताम्बरधरायां दिव्यमाल्योऽभिशोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यागिनोम् अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्रीश्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववैदल पञ्चारुषेय प्रवरान्वितां भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगारुषेय प्रवरान्वितां काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धगे विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா என்று சேவித்து கொண்டு மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்து இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்ய இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. மலைக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் எப்பொழுதும் ஒரு தொடர்புண்டு. ஏனெனில் ஆஞ்சநேயர் பிறந்ததே மலையில்தான். திருப்பதியிலுள்ள 7 மலையில் ஒன்றான் அஞ்சனாத்ரி என்னும் மலைதான் அவரின் அவதார தலம். அஞ்சனைக்கும் கேசரிக்கும் மகனாக பிறந்தவன். அதனாலேயே தான் ஆஞ்சநேயர் என்று அழைக்கப்பட்டார். உலகிலுள்ள எல்லா மலைகளும் அவருடைய தோழர்கள். அவர் மலையப்பனைப் போல உறுதியாக இருப்பவர். அதேபோல் மலையைப் போல வலிமை மிகுந்தவர். அதே சமயம் அமைதியானவர். அறிவில் எல்லோரையும் மலைக்க வைப்பவர். மலைகளின் ரகசியங்களை நன்கு அறிந்தவர். மலையின் உச்சியில் நின்று சூரியனை தொட்டவர். அவரே இவருக்கு குருவாக இருந்து எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுத்தார். மலை என்றால் வனமும் உண்டு. அதனால் இவர் வனவாசியும் கூட. மொட்ட விழும் மலரின் மணமும் தெரியும். பச்சை பூசியிருக்கும் மூலிகையின் மகத்துவமும் புரியும். மலை தன்னிடத்தில் மறைத்துள்ள மருத்துவ மூலிகைகளை ஆஞ்சநேயர் நன்கு அறிவார். ஞானியாகவும் சித்தராகவும் யோகியாகவும் எப்படி அழைத்தாலும் எல்லாவற்றிலும் வல்லவராக ஆஞ்சநேயர் இருந்ததால் தான் நமக்குள் அளவில்லாத சித்திகளை தமக்குள் பெற்றிருந்தார். நிறை குடம் தழும்பாது போல தன் சக்தியை தானே அறியாதிருந்தார். சமயம் வரும்போது தானாக அவரிடமிருந்து வெளிப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட ஆஞ்சநேயர் சதா சர்வ காலமும் ராமபிரானை செவித்து கொண்டிருந்தார். அந்த ராமபிரானுடைய திருநக்ஷத்திரம் இன்று புனர்வசு. அங்கே ராமபிரானாகவும் திருமலையிலே வேங்கடவனாகவும் எழுந்தள்ளிருக்கும் பகவானுக்கு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. சேவிக்கலாம் வாருங்கள் அந்த மாங்கல்ய பூஜையை. ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ வாசுதேவா.
இப்படி பிரம்மாவே இவரின் அருமை புரிந்து அஷ்டமகா சித்தியை கலையையும் அருளினாராம். இவரிடமிருந்த அஷ்டமா சித்திகள் என்னவென்று பார்க்க போனால், அஷ்டமா சித்திகள் என்பது 8 வகையான சித்திகள் குறிக்கும். முதலாவதாக அணிமா என்பது அணு மாதிரி மிகச் சிறியதாக மாறுவது, கிட்டத்தட்ட ஆலவிதைக்குள் ஒளிந்திருக்கும் ஆலமரம் போல ஒரு அணுகளவு உயிரையும் உடலையும் சுருக்கிக் கொள்வது. அடுத்து மகிமா, இருப்பதிலேயே மிக பெரிய உருவமானது, மலையின் எதிரே நின்று மலையை விட பெரிதாக மாறுவது. மூன்றாவது கரிமா, எடுத்த உருவத்தை கனத்து போகச் செய்வது, மலையை பெயர்க்க வேண்டுமெனில் மலையின் கனத்த சக்தியின் அளவை தன் உடலுக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளுவது. நான்காவதாக லகிமா என்றொரு சித்தி, லேசாக தன் உடலை மாற்றிக்கொள்ளுவது. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருததாம் தந்த்ரயோ வேத அன்வசுருத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதுனாம் கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யே நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருததாம் தந்த்ரயோ வேத அன்வசுருத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதுனாம் கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் பூதேவ்யே நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து. ప్రధాన హోమం హోష్కే
अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अग्निरेतु प्रथमो देवतानागुंसो अस्य प्रजां मञ्चुतमर्चभाषात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथे यज्ञस्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजां मञ्चुतमर्चभाषात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथे यज्ञस्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घमायुः अशोऽन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रभुत्यताम् मियग् स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोतञ्च स्वाहा आकोतिश्च स्वाहा विज्ञातञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा वं भू स्वाहा वं भव स्वाहा वोगं सुव स्वाहा वं भोर्भव सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानावित्यभिगार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घागुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घागुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घागुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतां सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिरुहोष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुरगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो प्रदानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षरातिदग्गः स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्गः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समितसितेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणीं सप्तहोत्राः सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा द्यौर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदर्जीर्णः स्वाहा द्यौर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णः स्वाहा ॐ मृतधान विद्वाननष्ट्वभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तामतितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीहीम् आवाहिदेवताभ्यो नमः यथा सुखमिधास्थानम् प्रवेशयामीम् अक्षतमक्षत्ये जहोमीम् अक्षतमसिमामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोक्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगाकुशं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रिगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगाकुशं दीर्घायुत्वाया बलाया सुताया सुतं च वर्चसे त्रिगाकुशम् आपोहिष्ठावगो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेर्णाकचक्षुषे यो वश्वतमोरथस्तस्य भाजगतेनः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वधाम् आपो जनगथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तुमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेन समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ஓ வெங்கடேசாய ஓம் நமோ நாராயணாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல் மற்றும் பூர்ணாகுத்தியை சேவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். அந்த 11 பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே
இப்பொழுது தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். அதாவது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளியுள்ள ஆண்டாளானவள் அங்கே எழுந்தருளியிருக்கும் வட்டபத்திர சாயி என்னும் ரங்கமன்னாரை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக காத்தியாயனி விரத நோன்பினை 30 நாட்கள் நோற்று அதன் பின் அந்த பகவானையே திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறாள். திருமணம் செய்து கொண்ட பின் அவள் கனவு காணுகிறாள். இப்படி நான் திருமணம் செய்து கொண்டேன், அந்த பகவான் வந்து என்னை கைப்பிடித்து அழைத்து சென்றார் என்று கூறும் பாசுரங்களை பாடி வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை முடித்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்படுவது. முதலில் வேங்கடவனுக்கு அணிவித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் அணிவிக்கப்படுகிறது. இப்படியாக 3 முறை மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்கிறார்கள். மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்து அவரை சேவித்து கொண்டு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கு அணிவிக்கிறார். வேங்கடவன் அந்த மாலையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். 7 கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா லக்ஷ்மிபதி கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வேங்கடவனுக்கு அணிவித்த மாலையானது மீண்டும் பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலைக்காக எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அவரை சேவித்து கொண்டு திரும்பவும் அந்த மாலையை கொண்டு வந்து பெருமாளுக்கு சாத்துகிறார். வட்டி காசுலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானுக்கு சாத்திவிட்டு மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே அமர்த்தப்படுகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்களே, எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சமும் பிராட்டிமார்களுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி சேவித்து கொண்டு கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தை சேவிப்போம். மூவரின் சிரசின் மீதும் அக்ஷதையை தூவுகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు.
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ